IMF معاشی استحکام کے لیے نئی پاکستانی حکومت کے ساتھ کام کرنے کا منتظر، پاکستان کے ساتھ سٹینڈ بائی کے دوسرے جائزے کے لیے مشن بھیجنے کو تیار، معاشی استحکام کے لیے نئی حکومت کے ساتھ پالیسیوں پر کام کرنے کے منتظر۔ IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس، کہتی ہیں نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد دوسرا جائزہ مشن بھیجنے کے لیے تیار ہیں، ہماری توجہ آئندہ ماہ ختم ہونے والے سٹینڈ بائی پروگرام کی تکمیل پر ہے۔ نگران حکومت میں معاشی استحکام برقرار رکھا گیا، IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن کا سیاسی صورتحال پر تبصرے سے انکار۔ MQM کو آصف زرداری کو صدارتی الیکشن میں ووٹ دینے کا اعلان، خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ صدارتی انتخابات میں آصف زرداری کی حمایت کریں گے، جمہوریت کو 22 سال سے تسلسل ملا ہے، اس کے اثرات عوام تک پہنچائیں گے، جمہوری قوتوں کو اختلافات سامنے رکھ کر بھی ڈائیلاگ جاری رکھنا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ امید ہے آصف زرداری بطور صدر وفاق کو مضبوط کریں گے، پہلی بار ہوگا کسی سویلین نے دوبارہ صدارت سنبھالی، کراچی کے مسائل مل کر ہی ختم کر سکتے ہیں، ہم وفاقی، صوبائی اور بلدیاتی سطح پر کراچی کی آواز بنیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے MQM وفد کی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں عشائیے کے بعد ہوئی، شہباز شریف نے آصف زرداری کے لیے ووٹ مانگا، وزیر اعظم نے MQM کے تمام مطالبات کو درست قرار دیا۔ ہمارے کینڈیڈیٹ پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب ہیں، 9 مارچ کو اتحادی پارٹیوں کا سورج طلوع ہوگا اور زرداری صاحب پریزیڈنٹ منتخب ہوں گے۔ صدر پاکستان جناب آصف زرداری صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، مل کر ہمیں اس کشتی کو پار لگانا ہے۔ ہوشربا چیلنجز گیس اور بجلی کا سرکولر ڈیٹ 5 کھرب روپے، PIA کا قرضہ 825 ارب، بجلی کی سالانہ چوری 500 ارب روپے ہے، اندازہ لگا لے صورتحال کتنی گمبھیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کے عشائیے سے خطاب، کہا 1.60 ٹریلین محاصل کے مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں، ملکی معیشت مشکلات کا شکار، سب مل کر خاتمہ کریں گے، ٹیکس بیس کو بڑھانا، ٹیکس کو کم کرنا ہے۔ قانون سے کوئی برتر نہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کا بڑا فیصلہ، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار برطرف کرنے کی سفارش سپریم جوڈیشل کونسل نے رائے منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھجوا دی، اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے خلاف 9 شکایات کا جائزہ آئین کے آرٹیکل 206 کی شق 6 کے تحت لیا گیا، انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 5 کے مطابق ججز کو تشہیر کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، ججز کی تشویش کے باعث جوڈیشل کونسل نے اپنے رول 5 میں ترمیم کر دی، جس کے بعد الزامات پر وضاحت دینے کا حق ججز کو دے دیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں پر 13 مارچ تک حکم امتناع میں توسیع، پشاور ہائی کورٹ نے تحریری حکم جاری کر دیا، الیکشن کمیشن کو انتخابی نتائج کی تصدیق شدہ دستاویزات فراہم کرنے کا حکم، فریقین کو آئندہ پیشی پر عدالت میں مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت۔ اٹارنی جنرل نے بتایا 6 مارچ کے حکم امتناع کا اثر صدارتی الیکشن پر نہیں ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، جسٹس عابد عزیز شیخ کا کل صاحبزادہ حامد رضا کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ سندھ اسمبلی میں دیگر جماعتوں کے اراکین نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں پر حلف اٹھا لیا، پیپلز پارٹی کے سریندر اور سمیتا افضال شامل، MQM کی فوزیہ حمید ایوان سے غیر حاضر رہی۔
PTI का इंतखाबी धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। असद कैसर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ग्रैंड अलायंस के लिए जमात इस्लामी समेत तमाम जमातों के साथ बात करेंगे। हुकूमत इन्हें बनानी चाहिए जो फॉर्म 45 के तहत जीते हैं। इस मुल्क को आईन और कानून के तहत चलने दें। हमें जेल इंतजामिया ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। हारने वाला हार तस्लीम नहीं करता और जीतने वाला अपनी जीतने पर मुतमईन नहीं है। हमें अपनी एस्टेब्लिशमेंट से यही इख्तलाफ है। वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे मुल्क के रहने वाले हैं, लेकिन तमाम वसाइल इख्तियारात को अपने अंदर समेट कर उसका इर्तिकाज़ करके अगर वो समझते हैं कि फैसले सिर्फ हमारी ख्वाहिशात पर होंगे और आवाम को सिर्फ हम दिखावे के लिए दुनिया के सामने रखेंगे, ये खेल नहीं चलेगा। हमारे साथ धांधली सियासी जमातों ने नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमें जबर की बुनियाद पर एक कौम नहीं बनाया जा सकता। धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रही तो अपनी अहमियत खो बैठेगी। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में जो कुछ कहा वो बदनीयती पर मबनी है। आवाम को रिलीफ देने का मिशन। शहबाज स्पीड सरगर्म। वज़ीर आज़म का गरीब और मुतवस्सत तबके के लिए 7.5 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज। आटे, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी, मशरूबात समेत 19 अशिया पर 30% तक रियायत। सस्ते आटे की तकसीम के लिए नए पॉइंट्स और मोबाइल यूनिट्स बनाने की हदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बलोचिस्तान में इजाफी 2000 रुपये फ़ी ख़ानदान दिए जाएंगे। रमज़ान मुबारक में नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने निजकारी का अमल तेज़ करने का भी हुक्म दे दिया। बिजली कंपनियों को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायज़ा कमेटी तश्कील देने की हदायत। पंजाब कैबिनेट ने रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। 65 लाख से ज़ायद रिलीफ पैकेज मुस्तहिक लोगों के घरों तक पहुँचाए जाएंगे। रिलीफ हैम्पर में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो बेसन शामिल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब कैबिनेट का पहला इजलास। अशियाए खुर्दनोश को क्वालिटी यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी को टास्क दे दिया गया। मरियम नवाज का दौरा सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपये के रमज़ान पैकेज का ऐलान। सूबे की 60% आबादी को 5000 रुपये नकद रमज़ान में देने की मंजूरी। 45 लाख खानदानों को रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। मुराद अली शाह की कमिश्नर को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने की हदायत। रमज़ानुल मुबारक की आमद। कराची में चीनी के साथ अशियाए खुर्दनोश का बहरान उठने को तैयार। कमिश्नर की रमज़ान रेट लिस्ट को होल सेलर्स ने मुस्तरद कर दिया। मुल्क की सबसे बड़ी अशनास मार्केट जोड़िया बाजार में हड़ताल। ताजिरों ने दुकानों पर ताले डालकर कारोबार बंद कर दिया। कहा, कमिश्नर कराची ने रेट लिस्ट होल सेलर्स से बगैर मुशावरत के जारी की। इस रेट लिस्ट पर सामान फरोख्त किया तो योमिया करोड़ों का नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना का कलमदान सौंपने का फैसला। जलील अब्बास जिलानी खारजा अमूर के मुशीर और तारिक फ़ातिमी वज़ीर आज़म के मावनीन ख़ुसूसी अमूर के खारजा होंगे। वज़ारत खारजा हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इसहाक डार, जलील अब्बास और तारिक फ़ातिमी की मुलाकात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए बड़ा रिलीफ। अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी नहीं रहे। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दिया। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बहारा कहू में असलहा और शराब बरामदगी का मुकदमा दर्ज है।
खैबर पख्तूनख्वा की नई कबीना तश्कील, कई वजारतें PTI के MNAs और सियासी खानदानों को मिल गई। कबीना में शामिल आकिबुल्ला खान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, फैसल तरक्की मेंबर कौमी असम्बली शहराम तरक्की और खालिद मुर्रवत MNA शेर अफजल मरवत के भाई हैं। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के कज़न अरशद अयूब ने भी बतौर वजीर जगह बना ली। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद खान गनी, साबिक सूबाई वजीर सेहत व ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा, मलिक लियाकत अली और दीगर को कोई वजारत न मिली। पनामा रेफरेंस में नवाज शरीफ के बेटों के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल। एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता रोज़ दौरान समाअत हसन और हुसैन नवाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दोनों 12 मार्च को पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, अदालत में पेश होकर केसेस का सामना करेंगे, इसलिए दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किया जाए। कराची सिटी कौंसिल एहतजाज के बायस मछली बाजार बन गया। कौंसिल हाल में शोर शराबा, कब्जा, मेयर नामंजूर के नारे। मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी के काजी सदरुद्दीन को बात करने से रोका तो हंगामा उठ खड़ा हुआ। जुल्फ़िकार भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद सिंध असम्बली में जमा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गलती तस्लीम की कि शहीद भुट्टो की फांसी गैर कानूनी थी। जो जुल्म हुआ है उसे ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करना होंगी। MQM के रुकन असम्बली अब्दुल वसीम का कहना था, नाना का कत्ल हुआ और नवासे ने फैसला सुना। हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां इंसाफ का फुकदान है। जमात इस्लामी ने भी करारदाद की हमायत कर दी। मोहम्मद फारूक बोले, जमहूरी लोगों को जोर ज़बरदस्ती नहीं, सबूत की बुनियाद पर सजा दें। नए मुआहिदे से पहले IMF का डू मोर $8 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम हार्ड टारगेट बन गया। हुकूमत को 29 अरब रुपए की सब्सिडी के साथ गैस की कीमतों पर 100 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी भी ख़त्म करना होगी। गैस के गर्दिशी कर्ज को काबू में लाने का मंसूबा भी जून तक जमा कराना होगा। IMF ने FBR को नीम खुद मुख्तार टैक्स अथॉरिटी बनाने का भी मुतालबा कर दिया। नेशनल टैक्स अथॉरिटी के विफाकी और सूबाई सतह पर टैक्स जमा करने, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को काबिल तकसीम पोल से निकालने की तजवीज़। टैक्स असलाहात के हवाले से कानून साजी भी की जाए। मोडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग शोबे की रेटिंग मुस्तहकम कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग शोबे ने ठोस मुनाफा कमाया। फंडिंग की सूरत हाल मुस्तहकम रही। पाकिस्तान में माशी और माली दबाव में कमी आ रही है। रवा माली साल माशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान। महंगाई 29% से कम होकर 23% तक आ सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की नेक तमन्नाओं पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मजहबी सकाफती वाबस्तगी के बंधन में बंधे हैं। पाक सऊदी अवाम के फ़ायदे के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। शहबाज शरीफ ने तहनीती पैगाम भिजवाने पर भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज खारियां माँ का दुख बांटने पहुंच गई। सरगोदा में 62 शख्स के जुल्म का निशाना बनने वाली मासूम बच्चे के वालिदैन से मुलाकात। मरियम नवाज ने मजलूम खानदान को दिलासा दिया। सूबाई वजीर को मुतासरा खानदान से राब्ता रखने और मसाइल हल करने की हिदायत। पुलिस को मुल्जिमान के खिलाफ केस की भरपूर पैरवी करने का हुक्म। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मरने वाले दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी।
कलदम टीटीपी को पाकिस्तान में हमले करने से रोका जाए, तहकीक की जाए कलदम टीटीपी ने जदीद फौजी सामान कैसे हासिल किया। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान से मुतल्लिक इजलास से खिताब। बोले कलदम टीटीपी की अफगानिस्तान में माली ज़राए का पता लगाया जाए। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया जाए वो कलदम टीटीपी से ताल्लुक़ ख़त्म करे। पाकिस्तान में पहली बार 2 मरीजों में जिगर की पैबंदकारी, लबलबे की ट्रांसप्लांट का तजर्बा कामयाब। 3 मरीजों को नई जिंदगी मिल गई। PKLI में पहली बार लबलबे और स्प्लिट लीवर के कामयाब ट्रांसप्लांट किए गए। रावलपिंडी के शहरी अजीज यासीन ने मरने से पहले अपने आज़ा अतिया किए, जिसकी वजह से 7 अफराद को नई जिंदगी मिल गई।